हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्कूल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में जो है, और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं। तो ओम्स लॉ जो ओम्स लॉ होता है बेसिकली ये को रिलेट करेगा किसको, जो है दो फिजिकल क्वांटिटीज में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि जैसे मान लो कि आपका क्या है, सपोज दिस इज द कंडक्टर एंड इफ दिस इज कंडक्टर इज देयर इनिशियली वी आर नॉट अप्लाइंग एनी सोर्स, सो देयर इट इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स and these free electrons they are randomly moving from one place to another place, right? When we are applying the potential difference across the end of this conductor, then what happens? The current this is flowing through this conducting wire or this conductor, right? So ohms ने जो ये potential difference हमने लगाया है और जो आपकी करंट फ्लो कर रही है आई, इन दोनों को कोरिलेट किया था। तो जब हम इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो एक तीसरी आपकी फिजिकल क्वांटिटी आती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपका मान लो शरबत बनाते हैं तो चीनी और उसमें पानी को क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो एक आपकी शरबत बन जाता है। वैसे यहाँ पे भी है तीसरी चीज निकल गई। वैसे यहाँ पे जब इसको और इसको कोरिलेट करेंगे तो ये तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ओम्स ने ये कहा था कि जब फॉर एनी कंडक्टर इफ यू आर कीपिंग इट्स फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, तो क्या होता है कि देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the electric current. Means what? कि जितना ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करेंगे दोनों अक्रॉस द एंड ऑफ द दिस, देन विथ रेस्पेक्ट टू दैट आपका इलेक्ट्रिक करंट भी उसी रेशियो में क्या, उसी के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स वैसे ही इंक्रीज करेगा। सो एट कांस्टेंट physical conditions, this is the statement of Ohm's law, at constant physical conditions such as temperature, pressure etc., temperature, pressure etc., the potential difference across the potential difference applied across the ends of conductor, any conductor if you want to write, apply the potential difference across the ends of conductor is directly proportional to electric current. Directly proportional to electric current means what? कि electric current is directly proportional to potential difference, or we can write V, this is V directly proportional to I, or we can say that V upon I, this is equal to what? Constant. And this constant, this is known as what? Resistance. This is another physical quantity. This is what? This constant, this is known as what? Resistance. So V upon I, this is equal to R, or we can write V equal to IR. So this is the statement of the Ohm's law कि according to Ohm's law, at constant physical conditions such as temperature, pressure etc., the potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to the electric current, right?
means I directly proportional to V or V directly proportional to I. So V upon I, this is what constant. This constant, this is known as what? Resistance of the conductor. So when we are correlated these two physical quantities, means potential and then after current, then third new physical quantity now we are going to discuss, and that is related to the resistance of any conductor. So here you have to see, according to Ohm's law, what we are finding that V, this is the directly proportional to I, or V equal to what? IR, where R, this is the resistance, this is the proportionality constant, and this is known as what? Resistance of a conductor. Now here you have to see that V directly proportional to I. So when you are going to draw the graph of V, and then after this is what, then what we are getting that? We are getting that this is what? Straight line we are getting that. This is what? A straight line we are getting that, right? Now after this one, we are going to discuss about this, what is the resistance. This is the new physical quantity that is known as what? Resistance of a conductor. So ये रेजिस्टेंस जो आपका है, इसका मतलब ये ओरिजिन आपकी कैसे होती है, जरा इसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस आपका होता क्या है। मान लो कि ये आपका क्या है? कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर। तो अब इसमें आपके क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर व्हाट? सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड इनिशियली when you are not applying the potential difference across the end of conductor, due to the thermal agitation or due to the heat, they are moving from one place, they are randomly moving from one place to another place, right? But here you have to see that the movement of the random movement of the electrons take place due to the thermal agitation. Still no current is flowing to this conductor, because the average velocity of all randomly moving electrons क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब इसको हम इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में थे वो रेंडमली मूव कर रहे थे, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अब मूवमेंट तो हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई इससे करंट आपकी फ्लो नहीं करती। उसका ये रीजन होता है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करके जो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है उनकी जीरो। But when you are going to apply the potential difference, means this wire is connected to any source. Suppose this is the battery is there, group of the cell. Then what happens? The electrons, they are moving in a particular direction after getting the energy from this source, right? तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट? तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सेलरेट। दीज रेंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गेट्स एक्सेलरेटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑन अप्लाइंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या होगा? तो जब ये मूव करने स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है ये इसके साथ कोलिजन कर जाए, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलिजन कर जाए। ऐसे इनफाइनाइटली मेनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब एक दूसरे के साथ हो सकता है कोलिजन करते हैं जब वो एनर्जी पाके वो भागते हैं लोअर से पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो जब कोलिजन करते हैं तो वही कोलिजन आपका क्या होता है? एक मतलब वही जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होती है वही हिंड्रेंस होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि जब कोलिजन हो गई तो वो अब तो क्या होगा? वो दूसरे डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा, मीन्स रुकावट हो गई फ्लो करने में। तो इसी कारण से आपका क्या होता है कि रेजिस्टेंस आपका डेवलप होता है किसी भी कंडक्टर में, राइट? तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या करता है? ये प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जिसके थ्रू वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है। मीन्स कोलिजन हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही क्या है? वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। जब वही रुक जा रहा है किसी दूसरे के साथ कोलाइड करके, मतलब हिंड्रेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस सिंपली क्या हो गई? इट इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस क्या हो गई? दिस इज इट इज प्रॉपर्टी
of any conductor by which it opposes the flow of electron, the electric current, by which it opposes the flow of electrons through the conductor. Or we can write that it is the property of any conductor by which it opposes the flow of electric current or flow of the electron through the conductor. ये डिफिनेशन आप लिए होंगे रेजिस्टेंस के। एंड इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ के थ्रू भी रेजिस्टेंस आपका डिफाइन किया जा सकता है। तो ओम्स लॉ आर लिख सकते हैं क्या, दिस इज द V by I, मीन्स द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स द रेशियो ऑफ दिस इज द फर्स्ट वन and this is the second one, the ratio of potential difference across ends of conductor to the electric current is known as resistance, right? चाहिए डिफिनेशन लिखे चाहे आप, ठीक। नाउ आफ्टर दिस वन यू टू सी, तो अगर इसकी असाइनमेंट की बात करें कि रेजिस्टेंस की असाइनमेंट आपकी क्या होती है, क्योंकि देखिए आपका क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटी को कोरिलेट करके ओम्स ने रेजिस्टेंस को बताया था जो है, तो उन्हीं के ऑनर में जो एसआई यूनिट आपकी होती है रेजिस्टेंस की, वो क्या बोलते हैं, ओम, और उसका जो सिंबल होता है ओमेगा का सिंबल होता है, राइट। तो एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम, एंड सिंबल ये ओमेगा का सिंबल आपका होता है। जैसे ये सिंबल है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का, और इसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा, राइट। तो अब उसके बाद आपका क्या है, थोड़ा हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में आफ्टर दिस वन, या उससे पहले थोड़ा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी आता है कि यू हैव टू डिफाइन द 1 ओम, तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट और उसके कंपोनेंट्स का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिंबल, वो डिस्कस करेंगे। तो डिफाइन 1 ओम, मान लीजिए सपोज दिस क्वेश्चन इज कमिंग, 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, मीन्स वी नो दैट वी मीन्स आर दिस इक्वल टू V by I। तो इफ R मीन्स रेजिस्टेंस, दिस इज द 1 ओम, 1 ओम होगा कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और करंट आपकी 1 एम्पियर की हो। मीन्स सपोज दिस इज 1 कंडक्टर इज देयर, दिस इज 1 कंडक्टर, एंड हियर we are created the potential difference between these two terminals, this is what 1 volt. If current flowing through this conductor, electron they are flowing in the direction, current, the direction of current, this is what, in the direction. If I am applying the potential difference across the end of conductor, this is the 1 volt, and current flowing through a conductor is 1 ampere, then resistance offered by this conductor, this is what, 1. So here you have to see the resistance of conductor, the resistance of conductor is said to be 1 ohm if
on applying if on applying 1 volt, if on applying 1 volt potential difference, if on applying 1 volt potential difference across the ends of conductor, across the ends of conductor, current flows across the end of conductor, current flows 1 ampere. 1 ampere through conductor. 1 ampere through conductor. So this is the definition of what 1 ohm means the resistance of conductor is said to be 1 ohm if on applying 1 volt potential difference across the end of conductor, current flows 1 ampere through the conductor. Right? So after this one you have to see electrical circuit. Electrical circuit. Electrical circuit means what? It is what closed conducting path which consists of the some electrical appliances like switches, bulb, fan, etc. Right? So electrical circuit, this is what it is closed conducting path which consists of electrical appliances. Which consist of electrical appliances like bulb, switches, wires, fans, etc. Right? Now here you can see when we are making the any electrical circuit, in that some symbols we are using, like suppose if any wire is there, so for wire we are using what? Straight line. For wire, suppose wire is there, so for wire we are using the straight line, right? Suppose any resistor is there in that, so for symbol of the resistor like that is there. This is for the constant, means constant resistance. Suppose for variable resistance like that, this is the symbol for the variable resistance. This is, and suppose this is V, this is the symbol for the voltmeter, right? And here if you are writing, suppose this is the symbol of the ammeter. And then this is the symbol of the closed switch. This is the close, and this is symbol for the switch. This is what? Open, right? And if this symbol is there, so this is symbol of the passing wire. This means both the wires ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं. तो these are the some symbols are there that is related to the electrical circuit. Suppose bulb is there, so the symbol of bulb like that. So this is the symbol of the bulb. Now after this one, this is the symbol of the single cell, and when you are combining so many cells, so this is symbol of what? Battery, right? So this is the symbol of cell, this is the symbol of battery, this is the bulb, this is the passing wire without joint, right?
this is the open key, this is the closed key, ammeter, voltmeter, variable resistance, this is the constant resistance, this is the symbol for wire. Now here if you see, this is the one problem. This is given on page number 208. ये आपकी क्या है 208 पे आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो दिया गया है कि दिस इज द क्वेश्चन एंड इट इज हैविंग टू पार्ट्स. इन फर्स्ट वन व्हाट दे आर आस्किंग दैट कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा. मीन्स सॉल्यूशन यू सी व्हाट दे आर आस्किंग फॉर द करंट. सो दिस इज द क्वेश्चन. Draw from a 220 volt. So potential what is given? Potential difference, this is the 220 volt. This is given. If the resistance of the bulb filament is what? 1200. बहुत simple question. R this is given 1200 ohm. पोटेंशियल दिस इज गिवन 220 वोल्ट. तो करंट निकालना बहुत सिंपल है ओम्स लॉ से. सो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू 1. बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है बहुत इसमें. सो V दिस इज द 220. I this we want to calculate. R this is given 1200. So I this is equal to 220 divided by 1200. This is the cancel out. So what we will get? I 22 and then after this is the 120. अगर इसको कट करना है तो this is what 11 and then after this is 60. राइट. 2 से काट दिया 11 और नीचे 60. तो दिस 60 एंड देन आफ्टर दिस इज व्हाट 11 डेसिमल 0 1 टाइम देन 60 देन 0 5 डेसिमल है ही 0 ना 8 टाइम्स जाएगा. सो 48. तो नियरली आपका कितना आएगा I this is the 0.18 एम्पियर या 0.2 भी लिख सकते हो इसको. सो पहले के लिए आपका कितना आंसर आएगा 0.18 एम्पियर आपका आएगा जो है. ठीक. सेकंड के लिए देखते हैं कितना आपका है. ये भी बहुत आसान सा है प्रॉब्लम. Now second one you have to see what is given. How much current will an electric heater coil draw? Again same thing is there, current that we want to find out. Our 220 volt, this is the 220 volts, this is given, and if the resistance of heater is 100 ohm, so R बहुत simple है, इसको कर सकते हैं. Again by Ohm's law. By Ohm's law what we will get? V equal to IR. Most simple say problem. So V equal to IR and here this is the 220. I this we want to calculate and then this is what 100. No? So I this is equal to 220 upon 100. ये कैंसिल हो जाएगा. Decimal means I this is equal to 2.2 ampere. This is your answer. Now we have to see this is your next problem and what is given the potential difference between the terminals of an electric heater. Means one electric heater है जिसका potential difference उसके terminals का कितना दिया 60. तो सोल्यूशन कैसे देखिए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे. आप लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए और जो चीजें आपको दी हुई है उसको लिखते जाएंगे. उसके बाद जो आपका पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क करके लिख लेंगे. अब उसके बाद सोचेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला आपका लगेगा. तो बहुत आसानी के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं सब सॉल्व हो जाएंगी. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती. तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर दिस इज 60 volts. So V आपका कितना दिया? This is the 60 volts. When it draws a current
ऑफ 4 एम्पियर। कब ये 60 वोल्ट है? जब कितने एम्पियर की करंट वो ड्रा कर रहा है? 4 एम्पियर की ना, फ्रॉम एनी सोर्स। तो इन दोनों की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस ये इतना आपका दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस यहां निकल आएगा। अब आगे देखिए क्या है, व्हाट इज द करंट। आप देखो करंट पूछ रहा है, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि अब कितनी करंट वो ड्रा करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया गया बाजू। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे वी और आई दिया है, यहाँ पे सिर्फ आपका वी दिया है, आई पूछ लिया है। ओम्स लॉ लगाएंगे तो वी इक्वल टू आई आर होता है ना, वी इक्वल टू आई आर। तो अब देखिए सेम उसके लिए आपकी बात करा ना, सेम हीटर के लिए जो है, तो अगर यहां से रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लें तो जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो वहां रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से रख देंगे जो है, ठीक, करंट निकल आएगा। तो यहां से देखिए हम लोग बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो ये आपका कितना है V, V की बात करें जो है, तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा, V आपका 60 और I क्या है 4, R कैलकुलेट करना है। तो R इक्वल टू कितना आएगा 60/4, 15 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस जो आपका हीटर का था वो कितना था, 15 ओम था, ठीक। तो यहां से फिर अगेन बाय ओम्स ना, सो V 120 दिया हुआ है, I निकालना है R 15 ना, तो I कितना हो जाएगा 120/15, 8 टाइम्स जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। कि मतलब जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दी 120, तो कितनी करंट अब उससे फ्लो करेगी, 8 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, क्योंकि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, 15 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, ठीक। ये आपकी प्रॉब्लम पेज नंबर 221 की एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का है आपको। इसमें क्या दिया है कि व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ द 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये भी आपको ओम्स लॉ से लाइक प्रॉब्लम है। तो क्या दिया है सोल्यूशन, ये रखिए। When a 12 volt battery means what? This is the group of cells या ग्रुप ऑफ सेल, ठीक। और इसका सिंबल हमने बताया था कि इस तरीके से सिंबल आपका होता है। दिस इज द सिंपल मीन्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स दैट इनवॉल्व द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। तो रजिस्टर आपका क्या होता है, दिस इज द डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ दैट डिवाइस। तो रजिस्टर आपका क्या होता है, डिवाइस होता है, और रेजिस्टेंस उसकी क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी, राइट। ये आपकी दो चीजें हो गई। तो नाउ व्हाट इज गिवन, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज द 12 V, दिस इज द 12 वोल्ट, दिस इज गिवन, and current this is what in milliampere, means I this is equal to 2.5 milliampere. Now this is what in SI unit there is no problem, but here you have to see this is the milliampere is given. We know SI unit of the electric current this is the ampere, so this you have to convert in the form of the standard unit. So we know that what 1 milliampere, so this is the 10 power minus 3 ampere. So how much is there, 2.5 milliampere, this is equal to 2.5 into 10 power minus 3 ampere, right? So this we can write 2.5 into 10 power minus 3 ampere. So milliampere it converted in the form of what, ampere, right? So you have to use Ohm's law. By Ohm's law, V equal to IR, right? This is the Ohm's law. So V what is given, 12 volt. No problem. I 2.5 into 10 power minus 3, R is there. Resistance this we want to calculate. So R, this is the 12 upon 2.5 into this is the 10 power minus 3. इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो प्लस हो जाएगा
तो ये आपका 12 हो गया और ये आपका 10⁻³ हो गया और नीचे 2.5। सॉल्व करने का बहुत अच्छा सा तरीका है। इसको हटा दो, यहाँ पे एक 10 बढ़ा दो, तो इसको आप देखो क्या है, दिस इज द 12 इंटू, इसको लिख सकते हैं क्या 100, एक जीरो और यहाँ दिया तो 100, अब यहाँ पे 10⁻² बचेगा, मतलब टोटल आपकी 10⁻4 हो जाती है, क्योंकि बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, तो पावर 4 होता तो ये हमने 100 क्योंकि 25 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे 25 लिख दिया जाए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा जरा देखो, ये 4 टाइम्स आपका जाएगा, तो कर दो 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो R आपका कितना आएगा 48 इंटू 10⁻² ओम, बिकॉज दिस इज SI यूनिट, राइट। R we can write R is equal to 4.8 इंटू 10⁻3, एक और बढ़ा दिया हूँ, ये भी लिखोगे तो भी सही है आपका जो है, लेकिन ये लिखोगे तो भी आपका सही। तो 4.8 इंटू 10⁻3 ओम क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस है।